I am Umang Lata and I am here in front of you with my new topic on new lecture, counter current mechanism. Counter current mechanism is a very important mechanism regarding the urine formation. Urine formation includes three steps which we are all know. First step is the glomerular filtration, second one is the reabsorption, and third one is the tubular secretion. ठीक है, so we can conclude the urine formation by telling or by explaining the counter current mechanism, which is a very important topic. So let's start the counter current mechanism. So the two terms which are used in the counter current mechanism, first one is the counter current multiplier and second one is the counter current exchanger. So counter current multiplier is the loop of Henle, okay, which produce the high osmotic medullary gradient approx 1200 milliosmol per liter at the bottom. ठीक है, it makes concentrate the filtrate which filter from the glomerulus, okay, and then maintained by the operation of the vasa recta act as a counter current exchanger as the flow of the fluid and the solute in the opposite direction. That's why it is called the counter current. ठीक है, because the flow of the fluid and the solute both are in the opposite direction. So there are the four questions which are arises from here. First one is what is the counter current multiplier? It is a loop of Henle. Second one is the counter current exchanger, which is called the vasa recta, and third one is the what flow in the vasa recta and what flow in the loop of Henle. So blood or the filtrate flow in the loop of Henle and the fluid flow in the vasa recta, okay. So now this is the simple diagram of the urinary bladder. Here we can say ureter, urethral opening, wall of the bladder. Remind, parasympathetic neuron, or there are the sympathetic neuron, which we can say parasympathetic system or parasympathetic system and sympathetic system, which are the two part of the anus, okay. So we can describe, I can tell you here one thing, that all the process which are related with the alimentary canal are promotes by the parasympathetic neuron and inhibits by the sympathetic neuron. Very important point here is all the alimentary canal related process promote by the parasympathetic system, and inhibit by the sympathetic system, and all except process process एलिमेंट्री कैनाल से जितनी भी एक्सेप्ट प्रोसेस हैं विच आर स्टिमुलेटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम एंड इनहिबिटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. याद रखना है ये चीज़, ठीक है. एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर, इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंटर, ठीक है. Now counter current mechanism, the definition is there that the repetitive reabsorption of the sodium chloride by the thick ascending loop of Henle and continued inflow of the sodium chloride from the proximal convoluted tubule, mean PCT, into the loop of the Henle is called the counter current multiplier. So the definition of the counter current multiplier is, ठीक है. Now this is the brief diagram, or we can shortly diagram. We can understand here the concentrate of the fluid, or maybe blood, or maybe filtrate increasing while it is going down and decreasing while it going to upper side, okay. How it can happen, let's talk about in the next picture. Here we can understand this by this picture. So let's first, this is the glomerulus, okay.
here the 300 milliosmol H2 milliosmol per ml per mg, this is the concentrate level of the blood or the urine blood. Okay, so one thing is that urine is also cold when the fluid reaches at the collecting duct. Okay, otherwise it is only the fluid or the filtrate, sorry, not fluid, it's a filtrate, or it's only a filtrate, not a urine, it's a filtrate, and when it is reaches at the collecting duct, it's called the urine. Okay, we can call the urine, or when it reaches to the urinary bladder, it called the urine. So remind that. So now, so here we can see this is the PCT. You can see PCT, assume the absorption of the sodium, absorption of the H2O, absorption of the chloride ion, and then the filtrate goes down to the loop of Henle. This is the descending arm of the loop of Henle. So a descending arm of the loop of Henle which is permeable to the H2O. So the H2O is moves out, or the reabsorb moves out from the loop of Henle in the descending arm. So it makes the concentrate level of the the H2 is goes out, so it make the concentrate level higher of the filtrate, so it makes at the bottom because of the moving out the H2O. सिंपल सा समझो कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा डिसेंडिंग आर्म के अंदर, वैसे वैसे H2O बाहर जाएगा, क्योंकि ये जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग आर्म है वो क्या है, परमिएबल है इस H2O के लिए. ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा H2O निकलता जाएगा, वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, कंसनट्रेट. फिर उसके बाद में देखो वापस से वो जब ऊपर जा रहा है, तो ये जो इसकी असेंडिंग आर्म है वो परमिएबल है किसके लिए, NaCl के लिए. तो जैसे जैसे वो DCT की तरफ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल की तरफ जाएगा, वैसे वैसे NaCl उसकी कहाँ आएगी, NaCl बाहर निकलता जाएगा, और वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, हाइपरटोनिक, या और इस ये जो कंसनट्रेट, ये जो फिल्टर है वो क्या होता जाएगा, फिल्ट्रेट है वो क्या होता जाएगा, हाइपोटोनिक. ठीक है, सिंपल है. तो DCT के अंदर जब पहुंचेगा तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. अब उसके बाद में जब वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वापस पहुंचेगा तो वहाँ पे वापस से H2O निकलेगा. ठीक है, तो दोनों तरफ से है H2O. अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बतानी है कि यूरिया जो है ना, यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो यूरिया पहले देखो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकला, फिर वो वहाँ से एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, हेनले लूप में. हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म में भी हो सकता है और हेनले लूप की असेंडिंग आर्म में भी हो सकता है. तुमको तो सीधा एक चीज़ ये याद रखनी है कि जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है नीचे जाता है बॉटम पे, उसकी कंसनट्रेट बढ़ती है, क्योंकि जो डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल है किसके लिए, H2O के लिए, जो कि उसको कंसनट्रेट बनाती है. और जैसे जैसे वो उसके DCT की तरफ जाएगा, वो जो है हाइपोटोनिक होता जाएगा, क्योंकि NaCl जो है वो बाहर निकलते जाएंगे. ओके, ये था. ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वही जो मैंने बताया कि द डिसेंडिंग लूप ऑफ द लूप ऑफ हेनले, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले has a high permeability to the water and low permeability to the solutes. Okay, and the ascending limb of the loop of Henle has a low permeability of the water but actively reabsorbs the sodium ion. Okay, तो ये याद रखना है. The distal tubule of the and the collecting duct also actively reabsorb sodium ion in the presence of the ADH. They are permeable to the water. ये पॉइंट्स जो है अपन को थोड़ा सा याद रखने हैं. The descending and the thin ascending loop of Henle are the permeable to the urea. ठीक है, तो यूरिया दोनों अब्जॉर्ब करती है, मैंने बताया आपको एरो के द्वारा. ठीक है, द थिक असेंडिंग लिम्ब एंड द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट हैव द लो परमेबिलिटी टू द यूरिया. The thick ascending limb
of the cortical part of the collecting duct have the low permeability to the urea, and the medullary part of the collecting duct has a high permeability to the urea that can be increased by the ADH. ADH बोलो तो एंटी डाइक्यूरेटिक हार्मोन। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं। वासा रेक्टा क्या है? द एनाटोमिकल अरेंजमेंट ऑफ दीज ब्लड वेसल्स मीन्स दे आर डोंट डिसिपेट interstitial osmotic gradients created by the loop of Henle. Large change in the blood flow in the vasa recta can reduce and increase the medullary interstitial osmolality। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपन को याद रखना है। कुछ नहीं है, वासा रेक्टा जो है उसको कंसनट्रेट बनाने या उसको उसके लेवल को कुछ मतलब ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज़ करने और डिक्रीज़ करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये ब्रीफ में है कि कैसे H2O जाएगा, तो H2O सोल्यूट आ भी रहा है और सोल्यूट बाहर भी जा रहा है। ये वासा रेक्टा के अंदर होने वाली मैकेनिज़्म है। चाहे वासा रेक्टा हो चाहे लूप ऑफ हेनले हो, जैसे जैसे फिल्ट्रेट और सोल्यूट नीचे जाएंगे वो उसकी जो उसकी जो कंसनट्रेट लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसका कंसनट्रेट लेवल घटता जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे इस डायग्राम से भी तुमको दिख रहा होगा कि वासा रेक्टा की जो दोनों आर्म हैं वो H2O के लिए और सोल्यूट के लिए परमिएबल होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये दिस इज़ इन द ब्रीफ। ठीक है, H2O निकला, NaCl निकला, H2O यहाँ से निकला। ठीक है, तो ये है। H2O कलेक्टिंग डक्ट से भी निकलता है, यूरिया भी कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है, फिर वो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है किससे? एन लूप की असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप से। ठीक है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से H2 निकला तो वो एब्जॉर्ब होगा किससे? वासा रेक्टा की असेंडिंग लूप से। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि लूप ऑफ हैनले की जो डिसेंडिंग आर्म होती है, यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन जब आप NCERT देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लूप ऑफ हैनले की जो डिसेंडिंग आर्म है उसके सामने वासा रेक्टा की असेंडिंग आर्म होती है। ठीक है, और जो लूप ऑफ हैनले की असेंडिंग आर्म है उसके ऊपर वासा रेक्टा की डिसेंडिंग आर्म रहती है। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तभी तो इसको काउंटर करंट बोलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो H2O डिसेंडिंग आर्म से निकलेगा लूप ऑफ हैनले की, वो असेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, और जो NaCl असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हैनले से निकलेगा वो डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा से एब्जॉर्ब होगा। याद रखना है। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा इसने कंट्रोल बताया या रेगुलेशन बताया है कि जब वाटर डिफिशिएंट होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैलिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी वास्टर। ठीक है, एंड देन ADH जो है वो सिक्रेट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एंड देन प्लाज्मा ADH लेवल बढ़ेगा और H2O की परमेबिलिटी क्या होगी? H2O परमेबिलिटी बढ़ेगी इन द डिस्टल कॉन्जुलेटिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, एंड देन H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और जिससे H2O एक्सक्रीटेड होगा। वही इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, सीधा सा अपन को याद रखना है कि जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो जो रिसेप्टर होंगे या जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर होंगे वो एक्टिव होंगे, और वो जो है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रेट करेंगे, एंड देन वो जो है बॉडी के अंदर डिस्टल कॉन्जुलेटिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है उन वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा? वाटर का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द ADH सिक्रेशन क्या है? प्लाज्मा इंक्रीज ADH क्या होगा? तो उसमें इंक्रीज ADH किस किस केस में होगा? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ेगी, ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा और ब्लड प्रेशर जब कम होगा। वही डिक्रीज ADH कब होगा? इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन में। तो ये याद रखने अपन को। ये ड्रग मैंने दिए ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ADH कब कब बढ़ेगा वो इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं। स्टिमुलस फॉर द ADH सिक्रेशन सेम चीज़ है जो अपन ने बताई। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो थ्रस्ट बढ़ेगा और जो ADH सिक्रेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ADH सिक्रेशन कम होगा। इंक्रीज थ्रस्ट, कंट्रोल ऑफ द थ्रस्ट एंड डिक्रीज थ्रस्ट। ठीक है,
एंजियोटेंसिन से, ये थोड़ा सा अपन ने बताया। इसको ज़्यादा याद करना देख सकते हो तुम कि इंक्रीज जब थ्रस्ट होती है तो ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड प्रेशर कम, और एंजियोटेंसिन ज़्यादा सिक्रेट होगा। एंजियोटेंसिन यहाँ पे सेकंड है बेसिकली, और ड्राइनेस ऑफ द माउथ होगा। और डिक्रीज थ्रस्ट में क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी कम, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, और एंजियोटेंसिन कम, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। वैसे याद नहीं करना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तुमको तो बस ये स्लाइड जो है याद करनी है। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज़्म। जो बताया है थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि हमारी बॉडी जो है वो फिल्ट्रेट की तुलना में 4 गुना सांद्रित या 4 टाइम्स कंसनट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, सो थैंक यू।